And here coordinate is the two dimension 2D. The x-axis x dash, that already you know. y सर किसी का माइक ऑन है? दीपक x dash y dash, that already you know. This is the both x and y positive, x negative, y positive, both negative, x positive, y negative. Okay. So anywhere if you select one point, that coordinate is the x comma y. What is x? इसमें x का मतलब क्या होता है? Value on x-axis. If you draw perpendicular, then a distance कितना होगा? OA. X units. Actually it is mod x होता है. I'm asking about distance, so mod x होता है. But for this case it is x होगा because of first quadrant. Suppose यहाँ पे point होता है तो आप x बोलोगे तो गलत होगा ना. हाँ सर. यहाँ पे एक Yes, point sir. होगा suppose -2,3. If you said x is the -2, मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, अब पूछूंगा इसका डिस्टेंस कितना, आप -2 बोलोगे तो गलत होगा. तो इट इज डिस्टेंस इज द mod x, बट बिकॉज ऑफ दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो x पॉजिटिव, तो हियर mod x इक्वल टू x एंड p डिस्टेंस और परपेंडिकुलर आप यहाँ से ड्रॉ करोगे पॉइंट p टू y axis, then this distance is the y. For this case मतलब mod y, for this case it is y. ठीक है. And here x is called, इसको क्या बोलते हैं? abscissa. X coordinate is called abscissa. Y coordinate is called ordinate. Ordinate. ठीक है. Y coordinate is called ordinate and x coordinate is called abscissa. And आप इसको join करोगे, if you join origin to point P, इसका distance कितना हुआ? और फिर distance कितना होगा? Root of x square plus y square. You can use Pythagoras theorem, no? Yes sir. This is the right angle triangle. ये x ये y, तो ये हो जाएगा under root x square plus y square. If OP makes an angle theta with respect to positive x-axis, then consider this one as R. Okay. तो OA distance कितना होगा? OA क्या हो जाएगा? R and theta में कैसे बोलोगे? R cos theta. R cos theta. वो भी P distance क्या होगा? R R sin sin theta. That is y, which is R sin. तो सेम x कमा y को मतलब इसको बोलते हैं ये जो x कमा y फॉर्मेट, P पॉइंट x कमा y, इट इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म. ठीक है. सेम P आपको r कमा थीटा फॉर्मेट में लिखोगे. ओके. where x is the r cos theta and y is the r sin theta, that is called polar form. In two different ways you can express your coordinate. One is the Cartesian format in terms of x and y,
और एक होता है पोलर फॉर्म in terms of r and theta, where r is the under root x square plus y square and theta is what? x and y में कैसे एक्सप्रेस करोगे? tan theta you Tan can theta. write y by x. हाँ सर. तो थीटा क्या हो जाएगा? tan theta बेटा, tan theta is equal to y by x. और theta you can write tan inverse y by x. बट इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि इसका एक रेंज पार्ट होता है, तो ये -90 से लेके +90 तक बहुत मतलब एंगल मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता है. तो सपोज मैंने ऐसे एक एंगल लाइन ड्रॉ किया तो मेरा एंगल ये होगा. मैंने क्या बताया? थीटा इज द एंगल विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव ड्यूअल एक्सिस, मतलब सॉरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो वो केस नहीं आता है, इसलिए बेटर tan थीटा के साथ जाओ. वेयर tan थीटा इज इक्वल टू y by x. ठीक है. तो सेम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को भी आप पोलर फॉर्मेट में लिख सकते हो इन फॉर्म ऑफ आर थीटा. तो ये मतलब आर थीटा जहां पे लिखा जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट एक्स क्या हो जाता है? आर cos थीटा एंड वाई हो जाता है आर sin. ठीक है. So in two different ways you can express your coordinate. One is the Cartesian form, another is the polar form. ज्यादा Cartesian यूज होता है, polar बहुत कम यूज होता है. और ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? This is the relation where r is the under root x square plus y square. That is the distance between origin to point P. ठीक है. And tan theta is the y by x. आपको x and y दिया जाएगा. You can find out r and theta. एंड आपका जो पॉइंट होता है वो होता है r cos थीटा कमा r sin थीटा, क्योंकि x का वैल्यू r cos थीटा होता है, y का वैल्यू r sin थीटा होता है. तो पॉइंट P x कमा y सेम एज r cos थीटा कमा r sin थीटा. समझाइए. हाँ सर. Yes sir. राइट डाउन.
Done. Yes, Sir, sir. just a minute. Wait, sir, Minutes, sir. please. Sir, done. Next is the distance formula. How to find out distance between two points. Under root x2 minus x. So distance of the line segment joining A and B, where A is the point whose coordinate are x1, y1 and B with coordinate x2, y2. तो distance of AB होगा आपका under root x1 minus x2 Plus y1 minus y. You can make x1 minus x2 or x2 minus x1 because of square nothing difference. Okay? कैसे मिल रहा है ये? Pythagoras theorem. सर स्लोप से क्या? स्लोप से कैसे निकलेगा? How can you find with using slope? हाँ सर, नहीं निकलेगा पाइथागोरस से. What is your OP distance?
ओपी कितना होगा? Sir, mod of x1 mod of mod of x, x1 mod of x1, तो x1 for this case. OQ कितना होगा? mod of x2, x2 for this case. तो PQ कितना होगा? x2 minus x1. plus x1 2 minus x1. Like that. BC कितना होगा? y2 minus y1. y2 minus y1. तो ये x2 minus x1 होगा, तो ये भी x2 minus x1 होगा. हाँ सर. Now in ACB जो राइट एंगल ट्रायंगल, मुझे AB डिस्टेंस चाहिए, मतलब हाइपोटेन्यूज चाहिए. क्या होगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लेंथ स्क्वायर, मतलब x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर रूट ओवर मिला. हाँ सर. So this is the distance of the line segment joining points x1 y1 and x2 y2 in. Distance from origin to point x, y क्या होगा? What sir? Distance from origin to a point x, y. Under root of x square plus y square under x square plus y square. Is under root x square plus Y y square, जो हम अभी इधर निकाले थे. ठीक है ना? OP डिस्टेंस, origin to a point का डिस्टेंस. ठीक है? This is your distance formula. आप ये लिखो x1 minus x2 लिखो कि x2 minus x1 लिखो, nothing difference. डिवीजन और सेक्शन फॉर्मूला, ये क्या होता है? सर डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिखना. हाँ, if a point P with coordinate x, y divides the line segment joining a x1, y1 and b
x2 comma y2 in ratio m is to n internally, then आपका x हो जाएगा mx2 plus nx1 upon m plus n and y हो जाएगा y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. और आप पॉइंट P को लिख सकते हो, पॉइंट P क्या हो जाएगा, वही होगा mx2 x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n and my2 plus ny1 upon m plus n. इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। ये भी आप लोग का था ना कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रूव कर पाएगा? Can anyone prove this? सर ऊपर का नहीं लिखा, थोड़ा 2 मिनट ऊपर लो ना सर। वो क्या सर? That this is the line segment AB, which coordinates are x1, y1 and x2, y2. PJ point which divides internally with coordinate x comma y. It divides internally m is to n. मतलब आपका PA upon PB is equal to m by n. Point A given, point B given, m given, n given. How to find out x and y? ठीक है? करो, ड्रॉ करो परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A, पॉइंट P and point B.
इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर से let this is m clearly अच्छा what is am कितना होगा? x minus x1 pn कितना होगा? x1 plus pn x2 minus x. x2 minus x bn कितना होगा? y2 minus y. y2 minus y pm कितना होगा? y minus y minus y1. है ना? क्लियरली हाँ सर. a mp triangle similar to pnb triangle, Yes, sir. है ना? Yes, sir. ये 90 हाँ, सर. आपका ए एंगल इक्वल होगा तो एंगल में क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। जब सिमिलर होता है तो साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम मतलब इक्वल आता है। Yes, yes sir ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू पी एम अपॉन बी एन। is equal to AP upon PB. Am I correct? Yes, sir. What is your AM? X minus X1 upon PN x2 minus x. X2 minus X. PM Y minus Y1 upon Y2 minus Y. What is AP upon PB? m upon n. m by n. अब ये दोनों को इक्वेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो nx minus nx1 is equal to mx2 minus mx. Implies what? x टर्म को एक साथ रखो, ये प्लस mx प्लस nx मतलब m प्लस n इंटू x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। मुझे x चाहिए तो x क्या होगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये जैसे x में ये ऐसे ही y में, हाँ सर. Yes, तो sir. ऐसे ही y हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा? इंस्टेड ऑफ x y डाल दो, my2 प्लस ny1 अपॉन m। देखो ये कॉर्नर टू कॉर्नर यूज होता है, m के साथ ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन। So there are two types of division, एक होता है internal division, एक होता है external division। external division मतलब वो क्या होता है? ये आपका A, ये आपका B, ये आपका P, मतलब P divides AB externally, outside में, inside में नहीं। ये क्या था? internally, in between AB के अंदर था, ये externally, ठीक है? वही पॉइंट A इधर रिमेन सेम, x1 y1 मतलब पॉइंट्स को लीनियर थे x2, तब ना. हाँ कोलिनियर तो होगा, ये बोल रहा है ना लाइन जॉइनिंग AB। स्टेटमेंट क्या था? if point P divides the line segment joining AB in ratio, तो लाइन में ही रहेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे रहेगा।
ओके, तो ये आपका x, y, here also AP is to PB is equal to M is to N given. Okay. स्टेटमेंट रिमेन सेम, इंटरनल की जगह एक्सटर्नल हो जाएगा. ये आपका होगा एक्सटर्नल डिवीजन. ये पॉइंट P divides the line segment नहीं होगा, the line joining है, क्योंकि इधर सेगमेंट नहीं होगा ना. the line joining AB x, A is the x1 y1 and B is the x2 y2 in ratio M is to N externally. Then आपका सेम फॉर्मूला होगा, जस्ट आपका प्लस के जगह माइनस हो जाएगा. mx2 minus nx1 upon m minus n, and my2 plus ny1 upon m minus n. ठीक है. और यू कैन राइट पॉइंट P क्या होगा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 minus nx1. ये आपका m, ये मतलब a मतलब कौन सा, AP द m रेशियो, ये आपका n रेशियो. ठीक है, तो m इंटू x2, a टू b होगा m x2 minus nx1 upon m minus n, एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m y2 minus n y1 upon m minus n. इसका मतलब आप इफ यू कंपेयर विथ फर्स्ट रिजल्ट, जस्ट रिप्लेस n as माइनस n, इतना ही होता है. n के जगह माइनस n डाल दो, आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा. समझा? सर कॉपी करें.
सर 1 मिनट के स्क्रॉल करेंगे ऊपर, कुछ कॉपी करना। डन। नो सर। सर डन। ओके। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा? x1 plus x2 by 2 and y के लिए y1 plus y2 by 2।
I'm referring A as x1, y1 and B as x2, y2. Midpoint of the line segment AB is आपका x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, क्योंकि आपका m/n क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा because of midpoint. हाँ सर. Okay. And you can choose also instead of m/n. Instead of m/n, also you can take k/1. Suppose आपका 3:2. Also you can write 3/2:1. बराबर होता है कि नहीं होता है? हाँ सर. 3:2 जितना होता है 3/2:1 उतना होता है. तो m/n कोई लेना चाहते तो भी k/1 भी आप ले सकते हो. ओके, इफ यू टेक k/1 तो आपका वही फॉर्मूला आ जाएगा. मतलब सपोज a is the x1, y1, b is the x2, y2, point P which divides AB ratio k/1 ratio और λ/1 ratio, then P point क्या हो जाएगा? P point net आपका k x2 plus 1 into x1 upon k plus 1. तो इसमें क्या था m and n दो अननोन के साथ जा रहे थे, आप एक अननोन के साथ जा सकते. and k y2 plus y1 upon k plus 1 ये भी ले सकते. ठीक है. Yes sir. Next, area of triangle. आप ये नोट भी लिख दो. Area of triangle with vertices x1 y1
x2 y2 and x3 y3 is half into x1 into x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 x2 into y3 minus y3 minus y1 x3 plus y1 y1 minus minus y2 इसका मॉड। ओके, ये वैल्यू आपका नेगेटिव भी हो सकता है, बट एरिया हाँ ऑलवेज सर ग्रेटर देन 0, दैट्स व्हाई मॉडुलस। और हाफ इंटू, इंस्टेड ऑफ x आप y यूज कर सकते हो, y1 इंटू x2 माइनस x3, मतलब रिवर्स में, और सॉरी प्लस y2 इंटू x3 माइनस x1, जस्ट xy इंटरचेंज करो, प्लस y3 इंटू x1 माइनस x2। राइट, और डू नो डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसका फिर मॉड। ठीक है, ये डिटरमिनेंट, ये आपका मॉड। डिटरमिनेंट पता है कि नहीं पता है? 3/3 डिटरमिनेंट। No, sir. नो सर नहीं सिखाया अभी तक हमें वो। नो सर इसका डिटरमिनेंट पता है? Yes, sir. A into D minus B into C. a माइनस bc होता है, ये आपका 10th में था। ये दिस इज क्रॉस 2/2 मल्टीप्लिकेशन ये होता है 3/3 डिटरमिनेंट, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। How to find out this determinant? You can find out your determinant row wise or column wise, that also any row wise, any column wise. You can find out your determinant any row wise, any column wise, but one thing you have to follow, this sign, alternative sign you have to follow। ये पोजीशन प्लस का पोजीशन, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इसको आप फॉलो करना पड़ेगा। कोई रो वन वाइज आप निकालो कि रो कलम वन वाइज निकालो कि कलम 3 वाइज निकालो कि रो 2 वाइज निकालो, जो भी निकालोगे आंसर रिमेन सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, बट यू हैव टू फॉलो दिस साइन। देखो, सपोज यू फाइंड आउट योर, यू एक्सपांड योर डिटरमिनेंट फर्स्ट रो वाइज, तो क्या करोगे, a1 को पहले क्रॉस करो, मैं इसके हिसाब से कर रहा हूं ना, a1 a2 a3 के हिसाब से, इसको पहले क्रॉस कर दो, क्रॉस एलिमेंट, बाकी जितने एलिमेंट्स बचे उसका डिटरमिनेंट, क्रॉस एलिमेंट इनटू डिटरमिनेंट ऑफ रेस्ट एलिमेंट्स, क्या होगा? b2 into c2 c3 b2 c3 माइनस b3 minus c2। c2 ठीक है, सेकंड होगा माइनस, फर्स्ट वन प्लस, सेकंड वन में माइनस। अब क्या करेंगे, a2 को क्रॉस करेंगे, क्रॉस योर a2, बाकी जो 4 एलिमेंट बचा, a2 में माइनस आया तो माइनस a2, बाकी जो 4 एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? b1 c3 minus b3 b3 c1
देन A3 को क्रॉस करेंगे, A3 तो प्लस A3, बाकी जो 4 एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट B1 C2 माइनस B2 C, ये होता है आपका डिटरमिनेंट। आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलता है। देखते हैं अभी, मतलब अच्छा इसका रो वाइज, ये मैंने रो वाइज किया, कॉलम वाइज करो। कॉलम वाइज करेंगे तो क्या होगा, पहले A1 को क्रॉस करेंगे, तो A1 इंटू क्या होगा, B2 C3 माइनस B3 B3 C2 C2, देन किसको क्रॉस करेंगे, माइनस B1। B1 को क्रॉस करेंगे, माइनस B1 इंटू A2 C3 हाँ सर, माइनस A3 C2, यस यस सर। A2 C3 माइनस A3 C2, ओके। देन किसको क्रॉस करेंगे, प्लस C1 प्लस C1 प्लस C1 को क्रॉस कर दिया, बचा क्या, A2 B3 माइनस B3 C माइनस A3 बिट, ठीक है। अब चेक, मैंने बोला था कि आप यू कैन एक्सपांड योर डिटरमिनेंट रो वाइज और कॉलम वाइज, एनी रो वाइज एनी कॉलम वाइज, चेक करो वेदर बोथ आर इक्वल और नॉट। इसको मैंने रो वाइज किया था, इसको कॉलम वाइज किया, ठीक है। चेक करते हैं। अब देखो आपका फर्स्ट फैक्टर दोनों के लिए सेम है, हाँ सर, वो तो सेम A1 ही हो इंटू जाएगा। B2 C3 माइनस B3 C2, A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द A2 B1 C3, हाँ A2 सर, B1 सेम। C3, next one is the plus A2 B3 C1, A2 B3 C1 प्लस में A2 B3 C1 प्लस में, ठीक है। हाँ सर, देन A3 B1 C2, A3 B1 C2 प्लस, ये चेक करो, A3 B1 C2 C2 माइनस माइनस प्लस, देन A3 B2 C1 माइनस में, A3 B2 C1 माइनस में, चेक करो, A3 B2 C1 माइनस में, बराबर। हाँ सर, सेम है। ये जो रिजल्ट था ये वही रिजल्ट आया, यस सर। ठीक है। दिस इज योर डिटरमिनेंट, इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट डिटरमिनेंट। और आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी रो कोई भी कॉलम के साथ आप निकाल सकते हो, बट यू हैव टू फॉलो दिस साइन। सपोज आप कॉलम 2 वाइज निकालना चाहते हो, फर्स्ट वन नेगेटिव होगा, सेकंड पॉजिटिव होगा, थर्ड नेगेटिव, ठीक है। आप चेक करो, तो मैं एक कॉलम 1 के साथ निकाल रहा हूं, तो क्या होगा, x1 इंटू, फर्स्ट इसको क्रॉस करेंगे ना, Yes, sir. हाँ, x1 इंटू Y2 minus Y2 Y3. माइनस Y3 मिला। Yes, sir. हाँ सर। सेकंड वन क्या मिलेगा, Y1 इंटू, नो कॉलम वाइज कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है, माइनस x2 इंटू y3 माइनस Y1 माइनस y1 माइनस Y3. y3, तो प्लस करेंगे तो क्या होगा, y3 माइनस y1 होगा, यस हाँ सर। सर, मिला। x2 यस इंटू सर। y3 माइनस y1, देन x3 को क्रॉस करेंगे, x3 क्रॉस करेंगे तो क्या Y1 होगा, माइनस x3 इंटू Y2, y1 माइनस y2, Y1 माइनस मिला। Yes, हाँ sir. सर। तो आप कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, डिटरमिनेंट यूज करो कि नॉन डिटरमिनेंट यूज करो, ओके। एंड आल्सो दिस वन इजी टू रिमेम्बर, आप ये सर्कुलरली मूव कर रहा है, Yes, इफ यू sir. चेक ये सर्कुलरली मूव कर रहा है आपका 1 2 3, जब मैं 1 कर रहा हूँ 2 माइनस 3 हो रहा है, आपका सर्कुलरली मूव कर रहा है, हाँ सर। 1 जब कर रहा हूँ 2 माइनस 3 हो रहा है, 2 जब कर रहा हूँ 3 माइनस 1 हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1
3 1 2, 1 2 ठीक है, सर्कुलरली मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप x y में रखो कि y x में रखो, दैट अप टू यू। तो मैंने 3 फार्मूला दिया और एक भी फार्मूला है, थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा, समझा ये? अच्छा, Yes, ये sir. कैसे मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे मिला? सर डू नो? नो सर। नो, No, sir. ओके। एक ऐसे रखा, let this is the point A with coordinate x1 comma y1, point B x2 comma y2, point C x3 comma, मुझे एरिया चाहिए, ठीक है। ABC से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C टू द x axis। ठीक है, तो तीनों से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये आपका डी ई एफ। तो कैन आई राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपका ए बी डी ई क्या हो रहा है? ट्रेपेजियम। कैन आई राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी is the area of trapezium ABDE plus area of trapezium AEFC minus area of trapezium BDFC। यस सर। ये ट्रेपेजियम एरिया प्लस ए ट्रेपेजियम एरिया माइनस ए एरिया, हो गया ना? हाँ सर।
तो रिक्वायर्ड एरिया तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है? half into base, half into height into sum of parallel sides. अच्छा, sum of parallel sides. अच्छा, what is the BD distance? Sir, x2 y2 y2 y2. AE distance, y1 y1 CF distance, y3 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 sir. DE distance, x2 x2 no sorry x1 x1 minus x2. x1 minus x2 EF distance, x3 minus x1 and TF distance, x3 minus x2 x2 2. है ना? yes sir तो ABDE ट्रेपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब y2 प्लस y1 y1 इंटू x1 माइनस ये हाइट हो x2 जाएगा, हाँ ट्रेपेजियम का सर ये हाइट होगा ना, x1 माइनस x2 प्लस ये एरिया, ये होगा y1 प्लस y3 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट x3 माइनस x3 minus x1 माइनस एरिया y1 y2 plus y3 y2 प्लस y3 into x3 minus माइनस x2 इसका मॉडुलस, हाँ, क्योंकि एरिया निकाल रहे, which is half multiply करो x1 y2 minus x2 y2 plus x1 y1 minus x2 y1. Am I right? Plus yes sir x3 y1 minus x1 y1 plus x3 y3 minus x1 y3, then minus x3 y2 plus minus minus plus x2 y2 plus into minus minus x3 y3 plus x2 y3. Am I correct? Which is yes half sir of, अब देखो x1 y1 आपका कैंसिल होगा, हाँ sir x2 x y2 भी कैंसिल हो y2 जाएगा, x2 y2 प्लस माइनस x3 y3 भी कैंसिल Yes. होगा, प्लस x3 y3 ठीक है, बचा क्या x1 y2 और एक x1 y3, x1 y2 प्लस में x1 y3 माइनस में, तो हम क्या लिख सकते हैं x1 y2 minus y3 x1 कॉमन y2 माइनस y3, देन x2 y1 और एक x2 रहेगा, x2 नो सर वो x3 है sir last में last term लास्ट x2 में y3 x2 y3 माइनस x2 y1, तो प्लस x2 रखेंगे तो y3 माइनस y2 minus y2 हाँ y1 देन x3 y1 x3 y2 माइनस में, तो x3 कॉमन y1 माइनस y2 minus y1 yes sir मिला, वही आंसर मिला था, हाँ सर समझा? तो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि फर्स्ट वन जो है सेकंड वन भी वही है, थर्ड भी वही है, तो ये तीनों से कोई एक प्रूव कर देंगे तो हो जाएगा। सर सर ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट सेम है? नहीं, ये डिटरमिनेंट
में आपको वैल्यू मिलता है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है। डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है, ये मॉडुलस जैसा लिखा जाता है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ऐसे लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया जाता है, नहीं तो ऐसे। सर ये हमें है क्या हाँ हाँ, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है ना आपका, एक चैप्टर है। 11th में? 11 में 11th में सीबीएसई वालों का है, बट आप लोग का शायद रहेगा, मतलब ये में सर 11th में शायद स्टेट बोर्ड में। 11th में ये सर स्टेट बोर्ड में भी है ये चैप्टर। हर बोर्ड में है, बट कहाँ 11th में, कोई बोर्ड का 11th में है, कोई बोर्ड का 12th में।
सर सर वो जो बीच में हमने जो लिखा था -A2B1C3 -B3C1 हमेशा वो नेगेटिव ही रहेगा वो A2। क्या ये? हाँ सर। हाँ, ये पोजीशन के हिसाब से नेगेटिव होगा ना। ओके सर स्क्रॉल कीजिए। थोड़ा ऊपर जाओ ना। सर थोड़ा ऊपर जाइए।
डन। सर लास्ट सर हो गया।
एक मिनट। फाइंड आउट दिस।
Sir, Yeah, sir, first one का आंसर 8. 8 यूनिट्स और सेकंड वन का 64.5 यूनिट्स. Anything else? सर मैंने फर्स्ट का आंसर आपको मैसेज किया है. मैसेज क्यों कर रहे हो? उधर चैट में डालो. वही सर, चैट वही होता है. चैट में डाले ना? हाँ सर. हाँ, ये तो मैंने लिखा है. एक तो मैंने लिखा है जवाब का. सर वही आ रहा है, सेकंड. कर रहा हूँ. सर हम्म. ये चैप्टर का नाम स्ट्रेट लाइंस है ना? हाँ, स्ट्रेट लाइन. बट ये जो पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, देन स्ट्रेट लाइन होता है. तो ये स्ट्रेट लाइन का अंडर आ जाता है. ओके ओके. पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए. स्ट्रेट लाइन में रखे हैं, इसको रखे हैं. जो आपका बुकलेट दिया गया ना, मॉड्यूल दिया गया, उसमें स्ट्रेट लाइन के अंडर में इसको रखे. नथिंग डिफरेंस. तो आप स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो. These are the three part of. Before to start straight line, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम जानना पड़ेगा.
सर सेकंड का आंसर भी 64.5 है। ओके, फर्स्ट वन कैसे निकाले? सर सीधा फॉर्मूला डाल डायरेक्ट फॉर्मूला सर। डिटर्मिनेंट को यूज किया था? नो सर। नो नो सर। सर। मैं डिटर्मिनेंट यूज कर रहा हूँ, तो ये होगा 3 - 2 1 4 7 1 1 - 4 है ना, इसका मॉड है। अब सर हाँ, तो 1 कैसे आया 3 - 2 के बाद राइट साइड में? फॉर्मूला दिया था ना। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। ठीक है, तो हम 3 को क्रॉस करेंगे, तो 3 × 3 को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? 7 माइनस ऑफ माइनस 7 4 - 4 प्लस 4। 7। हाँ सर। देन सेकेंड वन इज द माइनस ऑफ -2, मतलब +2 हो जाएगा। एक्चुअली दिस पोजीशन इज द नेगेटिव पोजीशन, तो माइनस ऑफ -2 +2 हो जाएगा। ये +2 × आपका 4 - 1 3, समझा? देन आपका 1 को क्रॉस करेंगे, 1 को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? 1 × 4 × -4 मतलब -16 -7 -23। तो ये 33 + 6 39 -23 कितना? 16/2 8 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, और एक फॉर्मूला जो मैंने नहीं बताया था। अच्छा, फोर सेकंड वन कैसे निकाले? सर डायगोनल बना के। 2 ट्रायंगल बना के। यस सर। ठीक है, और एक मैं फॉर्मूला देता हूं, दैट इज एप्लीकेबल फॉर एनी पॉलीगन। एरिया ऑफ n-sided polygon with vertices x1 y1 x2 y2 and so on up to xn yn, बट इन ऑर्डर होना चाहिए, डिसऑर्डर में नहीं होना चाहिए। इन ऑर्डर इज इक्वल टू, डिसऑर्डर होगा तो आपको ऑर्डर में करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा। इन ऑर्डर मतलब आपका देखो, सपोज मैंने कोऑर्डिनेट वाइज इधर एक पॉइंट दिया, इधर एक पॉइंट दिया, इधर एक पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिया, ये 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये आपका थर्ड पॉइंट, ये आपका फोर्थ पॉइंट। आपको बोला गया आप इसी हिसाब से जाओगे तो क्वाड्रेटल नहीं बनेगा ना। आप 1 to 2 जाओगे, देन 3 जाओगे, देन 4 जाओगे, तो ऐसा क्वाड्रेटल नहीं बनेगा। ठीक है, ये ऑर्डर में होना चाहिए, 1 के बाद 2, देन इधर 3 होना चाहिए, इधर 4 होना चाहिए। तो हालांकि जो मैंने क्वेश्चन दिया था इधर ऑर्डर में दिया है, चेक करते हैं। इज हाफ, आप कोई भी पॉइंट से स्टार्ट करोगे ऑर्डरली, x1 y1 x2 y2 x3 y3 and so on up to xn yn। 1 से लेके n तक लिखोगे, जो पॉइंट से स्टार्ट किए थे वही पॉइंट पर एंड करना चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5, तो 1 से 2 जाओगे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 1, तो कंप्लीट आपका फिगर बन जाएगा। ठीक है, और इसको कैसे मतलब कैसे लिखोगे, इसका मॉड, हाँ मॉड ऑफ मॉडुलस ऑफ
तो ये कैसे होगा, ऐसे डिटर्मिनेंट जैसा, हाँ? ये ए डिटर्मिनेंट प्लस ए डिटर्मिनेंट प्लस ए डिटर्मिनेंट ऐसे होगा, ठीक है। मतलब x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 ऐसे चलता रहेगा। अब लास्ट वन होगा xn y1 माइनस x1 yn, कोई भी पॉलीगन के लिए, ठीक है। हम पहले वो दोनों का निकालते हैं क्या हो रहा है। फर्स्ट वन का ट्रायंगल क्या क्या पॉइंट दिया गया था, 3 माइनस 2 4 7 1 माइनस 4, ठीक है ना। 3 Yes, sir. आप पॉइंट बोल दो, 3 माइनस 2, नेक्स्ट क्या है 4 7 1 माइनस 4। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट, जो पॉइंट पे स्टार्ट किए वही पॉइंट पर एंड करना चाहिए। इसका हाफ, तो कितना हुआ 21 माइनस माइनस प्लस 8 29 माइनस 16 माइनस 7 माइनस 23 माइनस 2 प्लस 12 प्लस 2 आ गया 8। Yes, sir. सेकंड वन देखो, सेकंड वन में क्या क्या पॉइंट रखा। 2 comma minus 3. अच्छा पहले ये चेक कर लो वेदर दिस पॉइंट्स आर इन ऑर्डर और नॉट। थोड़ा कोऑर्डिनेट में आपको चेक करना पड़ता है। इफ आई से 2 comma minus 3 कहाँ पे रहेगा, somewhere else 2 comma minus 3, then 4 comma 6 4 comma 6, then 1 comma 8, अरे 1 comma 8, then minus 3 comma 9। ये तो ऑर्डर में नहीं है, तो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपके हिसाब से निकाल देता हूँ। मैं सोचता हूँ मतलब ये ऑर्डर के हिसाब से, आपको ये तो नहीं बताया था ऑर्डर डिसऑर्डर, तो इसके हिसाब से निकालता हूँ, देखते हैं आपका जो आंसर आया था वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 comma सर मैंने वो 4 को 9 ले लिया, सेकंड पॉइंट है ना। Yes, sir. मैंने भी। सर मुझे वो 4 दिखा, कौन सा, अगर 9 लेंगे तो वही आएगा। हाँ हाँ sir. 9,6 Yes, हाँ sir. 9,6 9,6 हाँ 9 कर दो सर। फिर भी ऑर्डर में नहीं होगा। अच्छा ठीक है 9,6 लिए तो ठीक है, मैं आपका आंसर के साथ मैच कराता हूँ। आप जो 2 ट्रायंगल करके ये किए ना, मैं वो चीज मैच करा हाँ, देता हूँ। ऑल्दो इट इज रॉन्ग, मतलब ऑर्डर में क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 2 comma minus 3, देन आप 9,6 सोचे, ठीक है 9,6 Minus 3 comma 9. 18 देन माइनस 3 comma 9. 9, इसी हिसाब से लिया ना। देन 2 comma minus 3, क्या होगा 12 प्लस 27 39 72 माइनस 6 66 9 plus 24 33 again 9 minus 18 minus 9, तो 30, ये आपका 99 कितना हुआ 129 by 2 आ गया 64.5। Yes, यस sir. सर। ठीक है,
ऑल्दो आपका आंसर राइट नहीं है, बट आप जिस हिसाब से पॉइंट सोच के लिए थे, आप ऑर्डर सोच के लिए थे, एक्चुअली वो पॉइंट जो है ना ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। बट आपके जिस हिसाब से लिए थे मैंने उसी हिसाब से लिया। इसमें आपका आंसर क्या मिला? कोई 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल्स करने का जरूरत नहीं। आप एक में कितने पॉलीगन भी दिया, कितने साइडेड पॉलीगन होगा भी, आप यू विल गेट योर आंसर। समझा? बट ये आपका रॉन्ग आंसर। आज पॉइंट्स नॉट इन ऑर्डर, ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। अभी ऑर्डर में करते हैं, थोड़ा पॉइंट्स को रखो। एक्चुअली इसका आंसर कितना होगा देखते हैं। 2,-3, दिस इज योर पॉइंट, 2,-3, देन 9,6, क्वेश्चन को भी मैं 9,6 कर देता हूँ। ठीक है, तो 9,6 somewhere else you will get here. So next one is the 1,8, 1,8 somewhere else, and then -3,9, -3,9। अच्छा, 2,-3 दिया था ना, हाँ सर, तो नीचे है। तो इधर क्यों आएगा? तो Fourth फिर ऑर्डर quadrant में से पॉइंट है, तो पॉइंट फिर ऑर्डर में है। मैं वही सोच रहा हूँ, मैं तो सोच के दिया था, फिर क्यों क्या हुआ? तो फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर अभी करेक्ट होगा। 2,-3, 9,6, 1,2, देन आपका -3,9 है ना? यस सर। तो मैंने ऑर्डर में दिया है, तो आप देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है क्वाड्रेटल, यस सर। ठीक है ना? तो ये क्वाड्रेटल बन रहा है, तो आप विल गेट योर आंसर। तो ये रॉन्ग आंसर नहीं है, करेक्ट है। बराबर। सर तो सर मतलब इसे अभी पॉइंट्स को ऑर्डर करने के लिए हमें इसे ग्राफ में ड्रॉ करना पड़ेगा जैसे आपने किया है। हाँ, तो जैसे मैंने इसको सोचा था इधर है, तो ये पॉइंट को सपोज 2,3 के जगह 2,-3 के जगह मैं -3,2 ले लेता हूँ, तो आपको क्या होगा? सपोज इंस्टेड ऑफ 2,-3 इट इज -3,2 होता तो -2,3 होता तो इधर कहीं पे पॉइंट रहेगा आपका, है ना? यस सर। तो आपको ऑर्डर कैसे चूज करना पड़ेगा? ऐसे चूज करना, 1 2 3 4 ऐसे करो, 1 2, ये भी ऑर्डर बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर बन जाता है। सर -3,2 ना? नहीं, -2,3, -3,2 होगा भी ऑर्डर बनेगा, -3,2 होगा भी ऑर्डर बनेगा, इधर आ जाएगा ना, इसके नीचे आ जाएगा। तो 1 2 2 2 2 3 3 2 4 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। सपोज मैंने ऐसे दिया, एक पॉइंट इधर एक दिया, एक फर्स्ट पॉइंट ये दिया, सेकंड पॉइंट इधर दे दिया, थर्ड पॉइंट इधर दिया, फोर्थ पॉइंट इधर दिया, तो आपको बोला गया कि क्वाड्रेटल, तो क्वाड्रेटल 1 2 3 4 से नहीं होगा। ये क्वाड्रेटल बन रहा है क्या? मतलब ये मैंने फर्स्ट पॉइंट रखा, सेकंड पॉइंट को इधर रखा, थर्ड पॉइंट इधर रखा, फोर्थ पॉइंट इधर रखा, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिर फर्स्ट करेंगे, तो ये जैसे घूम रहा है ना, आपको वही एरिया मिल जाएगा, यू विल गेट दिस एरिया, ये एरिया आपको मिलेगा। ये क्वाड्रेटल नहीं बनेगा, दैट केस में आपको थोड़ा इंटरचेंज करना पड़ेगा, मतलब अरेंज करना पॉइंट्स को। तो ये दोनों को इंटरचेंज करो, क्या हो जाएगा? सेकंड पॉइंट इधर रखो, इसको सेकंड पॉइंट मानो,
मतलब थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट का पोजीशन को इंटरचेंज कर। सपोज मैंने दिया 4 कमा -2 2 कमा -2 कमा 7 3 कमा 4 and minus ऐसे पॉइंट दिया। फाइंड एरिया ऑफ द क्वाड्रेटल व्हिच वर्टिसेस आर दिस। तो आप डायग्राम के साथ नहीं जाओगे ना, आपका ये बनेगा नहीं। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या माने 4 -2 somewhere here, then second point आपका -2 7, then 3 4 here, then -6 6 इधर कहीं पे मिला। तो आपको ये दोनों का पोजीशन कहीं पे चेंज करना पड़ेगा। तो इसको आप फर्स्ट पॉइंट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे, ये पॉइंट थर्ड मानोगे, ये पॉइंट फोर्थ मानोगे, तब जाके क्वाड्रेटल बनेगा, अदरवाइज क्वाड्रेटल नहीं बनता है। आप सर ये ऑर्डर में रखेंगे तो क्वाड्रेटल नहीं होता है। सर तो मतलब जब भी हमें एरिया फाइंड करना होता है क्वाड्रिलेटरल का, तो हमें पहले इसमें ये हाँ। करना होगा ना। हाँ, रैंडमली आपको पॉइंट सिलेक्ट करके देखना पड़ेगा, बट इन जनरल क्वेश्चन ऑर्डर में दिया जाता है। बट एक बार ओके ऐसा सर, हुआ था, इसलिए 10th में हम लोग है ना सर सीधा करते थे ना। नहीं एक बार Yes, हुआ sir. था 10th में तो नहीं करेंगे वो, जे में एक बार दे दिया था फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेटल बट पेंटागन दिया था, बट ऐसे दे दिया था, बट ऑर्डर में नहीं दिया था, सबका गलत गया। ओके सर, समझा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ना आप कहीं पे भी यूज कर सकते सर नोट करें। करो।